عروضی نگاہ رکھنے والے شہر نگارہ کے محترم و معتبر شاعر نسیم اختر صدیقی کو مدرسہ حیات العلوم فرنگی محل میں ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور دانشوروں نے یاد کیا۔ فیمینل ویلفیئر سوسائٹی نے فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے مالی اشتراک سے مشاعرے و مذاکرے کا اہتمام کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ بہرحال اس خوبصورت منظر کو بھی قید کر دیا کیمرے نے، یہ تاریخ محفوظ رہی کہ سنجے مصرا شوق صاحب نے اس دفعہ کی جو خراب دلی کا مظاہرہ تھا وہ انتہا برقرار رہا۔ یو ایس نیوز سے جناب فیروز واسطی صاحب اور لرن آن لائن سے فیضان خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میڈیا کا استقبال نہ ہو تو یہ بڑا خطرہ رہتا ہے بات کے لیے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے، جو کچھ ہے وہی برقرار رہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا نام بھی لیا جائے اور استقبال بھی ہوتا رہے۔ دونوں جوانسار ہیں اور دونوں کا استقبال اس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ہمارے شعر کے ساتھ میں عباس جو جوان ہیں ارشد مصرا وغیرہ کے لیے شعر پڑھتا ہوں کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ تو اردو کو یا مذہب کو یا کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنا ہے تو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بغیر کسی فکر ہوتی رہنا چاہیے۔ اس خوبصورت منظر کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ صوفی سید علی صاحب اور صدر محترم کو نسیم اختر صدیقی صاحب کے بارے میں اگر ان کی گفتگو نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ محفل کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ اس لیے بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی تمیز کے یا لفاظی کے میں صوفی سید علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ مائک پر آئیں، نسیم اختر صدیقی صاحب کے متعلق اور آج کی محفل کے متعلق وہ گفتگو فرمائیں اور آج تمام کیمرے کو قید کر دیں تاکہ دیر تک اور دور تک ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صوفی سید علی صاحب جنہوں نے اتحاد بین المسلمین کا کام کیا، شیعہ سنی کے خاتمے کا کام کیا، تنظیم محمدیت ہے، جو فاروقیت ہے، جو صدیقیت ہے، جو علویت ہے، اس کو اصل روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی حوالے سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ وہ مائک پر ہے، تشریف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جزاک صاحب گائز پر تشریف فرما۔ آج کی میں صدر محترم اور میرے بھی محترم جناب علی صاحب، صاحب الشعراء جناب بابو سیادی صاحب، ہمارے مہمان ابو عالم صاحب، کریم اختر صاحب، شریف صدیقی صاحب اور فیض اکرم صاحب اور بہت محترم ہماری اس محفل کو سجانے میں جن کا اہم رول ہے، میری مراد ہے شہناز حضرت صاحبہ اور وہ پوری تنظیم جس نے آج کی یہ محفل اردو اکیڈمی سعید فخر الدین علی احمد کمیٹی کے زیر اہتمام اشتراک نے یہ فیمینل ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ نے اس کا انعقاد کیا۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکرگزار ہوں میں سنجے مصرا شوق کا کہ انہیں اس محفل میں شریک ہونے کا شرف مجھے بخشا۔ نسیم اختر صاحب کی بات اگر کی جائے اس تعلق سے کہ میرا تعلق تو بہرحال ان سے دیرینہ تھا۔ ہم لوگ کبھی چاند کیفے میں ایکویریگیٹ شرائباز پر ایک چاند کیفے ہوا کرتا تھا جو آج کی تاریخ میں گہنا پیلس کے نام سے مشہور ہے۔ ہم لوگ وہاں ایک ساتھ نشست ملاقات ہوا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ہمارا خیال ہوتا تھا، اس میں لکھنؤ کے تمام شعراء شریک ہوتے تھے۔ لیکن ان سب میں کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں نسیم صاحب ان سب لوگوں سے منفرد تھے۔ ایک تو یہ کہ انہیں بہت بڑا شاعر ہونے کا کوئی غرور نہیں تھا، میرا شمار وہ شاعر بہت بڑے تھے۔ ابھی تمام شاعری ان کے معنوی اولاد میں اتفاق کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس بات سے کہ یہ سنجے مصرا شوق ان کی بالکل اولاد کی طرح ہے۔ ان کی ایک اکیلی اولاد کریم اختر ہی نہیں بلکہ سنجے مصرا شوق بھی ان کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے جو شاعری کبھی پیش کی وہ اردو زبان کی، لکھنوی زبان کی اور
शायराना कमालात की जितनी सिफात हो सकती थी उनका सेलेक्टेड कलाम अभी संजय मिश्रा चौक ने आपके सामने पेश किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नसीम अख्तर साहब बड़े शायर थे और वो मशहूर थे आरूजा की तरह। इस शहर लखनऊ में शायरी के औजारों बहुत को जो दस्तरस हुए हासिल थी, जैसा मैंने सुना है क्योंकि मैं इस इल्म से बेहतर हूँ, मुझे पास इसका इल्म नहीं है, लेकिन अपने अकादमीन से जो मैंने सुना है वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि इस बारे में वो अपनी शनाख्त रखते थे। और जब कोई शख्स या कोई शायर अरूज में दाखिल हो जाता है तो उसकी शायरी का रंग नूर उड़ जाता है। लेकिन ये कमाल था नसीम साहब के यहाँ कि उनकी शायरी उसी तरह दोबारा है, उनकी फसाहत बलागत में कहीं कोई कमी नहीं है और पूरी तरह उनके ऊपर उन्होंने मामला किया। और एक शेर मुझे उनका याद आता है इसलिए कि ये मैंने जिन लोगों की सोहबत पाई वहाँ अक्सर ये जिक्र होता था कि शेर को परखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी नस्ल कर ली जाए, उसकी नस्ल कर ली जाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, मैं टूट कर बिखर गया मगर खुदा कहा नहीं। आप इसे नस्ल में बिल्कुल कहीं रोक टोक नहीं है, दोनों मिसरे बिल्कुल लिखते चले जाएंगे एक साथ, कहीं आपको किसी तरह के पंक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शेर अपने आप में इतना बरीक है कि इसको आप आज से अगर चाहें तो 1400 साल पहले भी पहुंच जाए और हज़रत बिलाल के रूबरू हाजिर हो कि जब उनका आका उनके ऊपर जुल्म करता था और उनकी चर्बी उधेड़ दिया करता था और वो कहता था कि मुझे मानो उस खुदा को मत मानो, तो ये शेर वहां भी साबित आता है कि अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, मैं टूट कर बिखर गया खुदा कहा नहीं मगर खुदा कहा नहीं। और आज की इस जो पुराशोर दौर में हम अगर देखें तो इस दौर में नसीम अख्तर साहब जैसे लोग खुद तो इसके पूरी तरह से प्रैक्टिकल मैन थे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने शागिर्द की शक्ल में एक संजय मिश्रा चौक भी ऐसा दिया है कि अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, मैं टूट कर बिखर गया मगर खुदा कहा नहीं। इस सिफत के मालिक हैं ये संजय मिश्रा चौक। और बहरहाल मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमेशा अपने उस्ताद के शागिर्द होने का फख्र के साथ ऐलान करते हैं। इस लखनऊ में मैं जानता हूँ कमोबेश नसीम अख्तर साहब के 100 शागिर्द रहे होंगे, अपनी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा और मनसब के लिहाज से भी कहीं ऊपर लोग शायरी में उनके शागिर्द थे नसीम अख्तर साहब के। लेकिन इन तमाम बातों के साथ नसीम अख्तर साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक सादा जिंदगी की तरह गुजारी और किसी तरीके की कोई भी उनके अंदर बनावट नहीं थी। और जिन जिन हालात से वो गुजरे, मेरा कुछ ताल्लुक उनसे करीब का भी था, लेकिन कभी किसी आबाद की महफिल में भी किसी को यह खबर नहीं होने पाई कि नसीम साहब के हालात क्या है। एक सच्चे इंसान को जहाँ जिस जगह होना चाहिए वहाँ नसीम अख्तर साहब थे। ये मेरा अपना तरीका है। नसीम अख्तर साहब की बात अगर की जाए तो एक मुद्दा और है, क्योंकि मेरे साथ अभी ताल्लुक में उन्होंने जो कहा उतना तो नहीं है, लेकिन एक मेरी कोशिश जरूर है कि मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह से है। मैं हज़रत शाह अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी अब्बासी रज़वी के घराने का एक नाकारा अफरद और उस दरगाह का इस वक्त मैं ही मुंतज़िम और खादिम हूँ, जिसको आज के ट्रेडिशन में सबसे ज़्यादा भी कहा जाता है। बहरहाल लेकिन मैं खादिम हूँ, हाजिर हूँ आपके सामने कि एक बहुत बड़ी बात है कि जिसमें तज़ाद है। जब बात आती है इंसानों की गुफ्तगू की तो कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात, और बहुत खुश होते हैं तमाम दानिशमंद ये कहकर, लेकिन फिर जब बातें आती है तो वो फरिश्तों को ऊपर कर देते हैं, इंसानों की मिसालें कहते हैं यार फरिश्ता सिर्फ इंसान है। बात साफ नहीं हो रही है कि इंसान अशरफ है कि फरिश्ता अशरफ है। एक तरफ इस पर मकबूल है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और उसके बाद जब मिसालें उसके अच्छे कारनामों पर देते तो कहते फरिश्ता सिफत है। एक फरिश्ता इंसानों से ऊपर निकल गया, ये सच्चाई नहीं है। इंसान ही अशरफ है,
बेशक इंसानी ही अशरफ है, बशर अशरफ है, ये अलग बात है कि सब नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए भी अर्ज कर दूं कि मैं जो समझ पाया हूँ वो ये कि अशरफ होने की वजह भी लोगों ने अपने अपने करार से बताई है। मैं जो समझ पाया हूँ मैं भी चाहता हूँ उसे अर्ज करूँ आपके सामने कि सबसे बुलंद तरीन मकाम जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ उस खुदा का है, उस ईश्वर का है, उस क्रिएटर का है जिसने तमाम आलम का प्रेम की है और सब उसी के पैदा किए हुए हैं। तो जिसकी निस्बत उससे सबसे ज्यादा हो जाए वो ही सबसे बुलंद होगा। किसी फरिश्ते की निस्बत इतनी बुलंद नहीं है जितनी के बशर की है। मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब करार देकर आपने सिर्फ अशरफ को इस बशर को सिर्फ बशर को अशरफ के दर्जे में रखा है और उसी की बुनियाद पर हम ये फख्र करते हैं कि हम अशरफ हैं। और जिन लोगों ने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों जिंदगियों को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाया, जिन्हें हम उर्फ आम में औलिया कराम से ताबीर करते हैं, वो सब अशरफ की ही सिंफ में आते हैं। बहरहाल और उस शेर को मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि उस शेर को इस तरह कहा कि रब था हमारा कफील, टूट गई है फसील, चुप थे जहां जिब्राइल, हमने वहां बात। ये नसीम अख्तर साहब का शेर है और उन्होंने सनद दी कि हम क्या हैं। गुलामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफील वो ये शेर कह सके कि उन्होंने अपने आप को पेश किया है, जबकि ये इशारा आकाई की तरफ है, लेकिन हम भी यही कह सकते हैं जैसे कभी अरे कमाल है, वाह 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 वाह। तो बहरहाल में 5 रुपए तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी तमाम तक खराज की रसूल पेश करता हूँ और अल्लाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और जिन लोगों ने भी आज की महफिल उनके लिए कायम की है, अल्लाह उनको इससे ज्यादा तौफीक दे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बात कर सकता हूँ जज्बाती ताल्लुक है मेरा उनसे, बहुत एक तवील अरसा हमारा उनका गुजरा है। वो तकरीबन आज से 12-13 साल पहले हम सबको इस दुनिया से दूर होकर चले गए। मैं सिर्फ इन दुआओं के साथ कि अल्लाह उनके साथ बेहतर से बेहतर मामला करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। खुदा किताब का जो पैगाम था वो वाकई चली हरूफ में लिखा जाए, आप जर से लिखा जाए तो कम है। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूर समझना चाहिए कि इंसान की अजमत क्या है। इंसान की अजमत के लिए जो साहब फरमा रहे थे, हमारे उस्ताद इकबाल बशर ने कहा कि फरिश्तों की इबादत के लिए तो आसमानों पर मलाइक थे, इबादत के लिए तो आसमानों पर मलाइक थे, मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया बनी हुई है। मोहब्बत का जो ये फलसफा है इसको समझने वाले हजरत इंसानी है, इसलिए इंसान को अपनी अजमत को समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो लोग अपनी हैसियत को नहीं पहचानते वो खुद को दरगोर कर देते हैं। यानी इंकिसार अपनी जगह, आजिज़ी अपनी जगह, लेकिन अहमद इब्राहिम अज़मी साहब को और दीगर पदावर पढ़े लिखे लोगों को अपनी अजमत, अपनी अहमियत को समझना चाहिए। इतना हल्का नहीं करना चाहिए कि हम दरगोर हो जाए। बहरहाल मैं चलता हूँ, सूफी सैयद अली साहब के बाद मैं ऐसे ही गुफ्तगू करता हूँ, इसे मेरा कोई कसूर नहीं। तो अब मैं सलीम अख्तर साहब को रहमत देता हूँ कि वो अपने वालिद के मुताबिक या कुछ तासुर बेटे का भी होता है साहब के मुताबिक। तस्लीम लाए जनाब सलीम अख्तर साहब इस्तक़बाल तालीम से। सूफी साहब और जनाब अफरोज साहब और महफिल में मौजूद ये वो नाम है जिनकी मौजूदगी में मेरे जैसे छोटे आदमी बोल पाना आसान काम है। और इन महफिलों से मैं इसीलिए डरता रहा और थोड़ा सा परहेज भी करता रहा, क्योंकि शायरी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक मेरा नहीं रहा। पर वालिद साहब ने ये नहीं रखा, वो शायद रिजर्व कर रखा था संजय भाई के लिए। लेकिन जब मैं और एक वजह और जब मैं ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि दो चीज़ें थे वाले, दो लाइफ की। एक
नौकरी का एक शोबा था, नौकरी उन्होंने सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए रोजी रोजगार हमारे मुख्य, लेकिन उनका असली जो वो था फन और जो दिल था वो शायरी से ही जुड़ा रहा, उर्दू मतलब से जुड़ा रहा। तो नौकरी नगर निगम में थी, बहुत ज़्यादा बहुत होती थी, शायरी थी, साथ साथ मिलकर के अपना चलता था। तो यही सोच करके शायद उन्होंने आपको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान किया, उधर से हट। इसीलिए कभी कभी लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं तब लगता है कि ऐसा तो नहीं कि उससे नाइंसाफी हो गई कि दुनियावी कामयाबी या उसको मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने एग्जाम पास किया, फिर ऑफिसर की पोस्ट पे हुए, क्लास वन, फिर भी लगता है कि ऐसा तो नहीं है, फिर उन्होंने शायद वो शोभा नहीं, उसमें हमको वो जगह या उस तरह तो शामिल नहीं किया। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो शायद वो संजय भाई डिजर्व भी करते थे कि अपनी सलाहियत भी होती है, मेरे सलाहियत भी नहीं थी, शायद जो सलाहियत थी वो हासिल किया, छोटा मोटा सा काम। तो ये प्रोग्राम भी मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मुझे और आना पड़ा। हमारे नयाब मुल्तान मुजैदी साहब हैं, उनकी वाइफ सेक्रेटरी हैं कल्चरल सोसाइटी में, और ये बचपन से हमारे साथ बहुत दोस्त हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वालिद से बहुत अच्छा नाम भी था जैसे। तो जब ये पूरा उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा प्रपोजल मूव किया है तो अच्छी बात है भाई, पहले आपको भाई देखना है ये काम, तो आपको देखना है। इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद तुम इस धोखे में हो कि इस प्रोग्राम में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो फिर हमने जैसे कि हमसे उम्मीद की जाती है तो आपको सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छे लोग तशरीफ लाए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बेगम साहिबा के बहुत शुक्रगुजार हैं, ये अच्छी जगह और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर काम करने का, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। शेर मुझे याद भी रहते, मुझे शौक बहुत है मगर भूल जाते हैं ज़्यादातर शेर, लेकिन कुछ शेर जो है वो ध्यान में रह जाते हैं। तो अगर आप पापा के कुछ शेर याद करते हैं तो उसमें एक शेर याद आता है मुझे कि अपने बालों पर खोले सो रही थी रुसवाई, मेरा बागपन देखो मैं उसे जगा लाया। और इसी तरह का एक और शेर है जो नौजवान का वो हम ही लोगों हमने भी अपने मतलब का इंतजाम रखा। बिल्कुल मतलब का अब आ रहा है, मतलब का अब आ रहा है कि सौंप कर जमाने को उम्र भर का सरमाया, मैं नहीं शानों पर बारे गम उठा लाया। वाह वाह, बहुत तो ये कुछ अशार है, संजय भाई ने कुछ गुंजाइश छोड़ ही नहीं थी। तो ये शायरी के हिस्से में हमारे बड़े भाई हैं और नसीम साहब के बड़े बेटे हैं जो भी बड़ा काम कर गए, छोटा काम मेरे लिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है तमाम शायरों में जो दिखाई देते हैं विजिबल शागिर्द यही है। तो जो कुछ उन्होंने किया तो जिनका फर्ज था, बेटा जब कह दिया तो कोई वो शुक्रिया की कोई बात ही नहीं, लेकिन ये बहुत काबिल तारीफ काम है। और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, हमसे जो हमारी हैसियत में जो कुछ है हम उसमें अपने लिमिटेशंस के अंदर अपने नौकरी से वक्त निकाल करके या और तरीकों से हम उसमें अपना ताल्लुक करते रहेंगे। और आप लोग से यही है कि आप दुआएं बरकरार रखें और इस आपके लिए भी, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। और आप सबका एक बार मैं शुक्रिया बहुत अदा करता हूँ कि आपको तशरीफ लाए और शाम को यादगार शाम। बहुत शुक्रिया जनाब सईद अख्तर साहब, बहुत मुख्तसर और भरपूर गुफ्तगू आपने की, साले बेटे की साले औलाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।